Welcome to Ayurveda PG Pathshala YouTube channel. We are starting our high yield series, the topics which are high yield, both for your AIPGET exam as well as your BAMS Prof exams. This series will go alongside our Charak Samhita series, which is already going on our channel. You can check out the Sutrasthana chapter which we have added. Uh, that series will continue, and in this series we'll discuss some topics, as I said, which are both important for your PMS Prof exam as well as AIPGT exam. So today's first topic of this series is going to be COPD, chronic obstructive pulmonary disease. It is a very important topic, both for your Prof exam in Kai Chikitsa, and it's a growing concern in today's world, COPD. So questions are asked in AIPGT exam as well. So let's begin the topic. My name is Dr. Sumit Raina. I'm MD scholar in Kai Chikitsa and founder of Ayurveda PG Pathshala. So as you can see, the first slide itself shows the healthy lungs and the COPD lungs. So let's discuss this topic. The contents of this lecture are going to be introduction, diseases of COPD, which are the diseases that form this COPD spectrum, then the pathology of this condition, risk factors, clinical features, diagnosis, management, complications, difference between chronic bronchitis, emphysema, and asthma. This is going to be very important, and high yield topics, as I said, high yield points for AIPGET, which are the points that are going to be asked from this chapter, this topic, this disease. So let's start. Definition: according to WHO, World Health Organization states that COPD is a common. First of all, it is very common, it is preventable, and it is treatable. There is treatment available, and it is a life-threatening disease. तो इन पॉइंट्स को हम समझेंगे कि कॉमन भी है, प्रिवेंटेबल भी है और ट्रीटेबल भी है. हम इसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से. हम अगर इससे बीमार होते हैं, ग्रस्त होते हैं, तो हम इसे ट्रीट भी कर सकते हैं, और लाइफ थ्रेटनिंग भी है ये. अगर हम ट्रीट ना करें तो डिजीज़ से जान भी जा सकती है. कैरेक्टराइज होती है क्रॉनिक एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन. द क्रॉनिक एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, इट इज़ नॉट फुल्ली रिवर्सेबल. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि it is not fully reversible. We can't reverse the disease completely. We can reverse the damage done to the lungs, but once the damage is done, once COPD is done, it's done. The damage that is done, it is going to be there. It is going to affect our daily life. It is going to affect our day-to-day activities, but we can reverse the effect, but we can't fully reverse the damage. So the patient will have persistent respiratory symptoms, including difficulty in breathing and coughing. So disease burden of COPD. Why COPD is important for AIPGET as well as your Prof exam is that the COPD is a leading global health crisis. It is ranked as third to fourth leading cause. तीसरा और चौथी रैंक पर आता है ये सबसे ज़्यादा डेथ करने में वर्ल्ड वाइड, नॉट इंडिया, नॉट डेवलप्ड कंट्रीज, होल वर्ल्ड, resulting in about 3.2 to 3.5 million deaths annually, 32 to 35 lakh deaths annually, and affects 200 to 480 million people globally. It causes significant disability adjusted years. 90% of death occurs in low and middle income countries, जिसमें इंडिया भी आता है. In 2021, there were an estimated 213.4 million prevalent global cases, causing 3.7 million deaths. Tobacco smoking accounts for over 70% of cases in high income countries. हाई इनकम कंट्रीज़ में स्मोकिंग, लो इनकम कंट्रीज़ में एयर पोल्यूशन. तो दोनों में स्मोक ही हो रहा है, बस एक में विलिंगली हो रहा है और एक में अनविलिंगली हो रहा है. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे पीजी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग भी कि हाई इनकम कंट्रीज़ में क्या कारण है. जैसे हमने अपने टेलीग्राम चैनल में भी पूछा था कि एक्यूट लिवर इंजरी या एक्यूट लिवर जो हमारा डैमेज होता है उसका हाई इनकम कंट्रीज़ में क्या कॉज होता है और लो इनकम कंट्रीज़ में क्या होता है. तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसमें देख सकते हैं. तो हम उसी तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछते रहते हैं रेगुलरली, जो कि
पूछे जा सकते हैं, है ना। हम रिपीट नहीं करते कि जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वही रिपीट करेंगे, हम न्यू क्वेश्चंस बनाते हैं, नए क्वेश्चंस उसमें पूछते हैं। उसके बाद रीजनल डेमोग्राफिक वेरिएशंस क्या होते हैं कि हाईएस्ट बर्डन इसका कहाँ आता है, साउथ एशिया में, जिसमें इंडिया भी आता है, और नॉर्थ अमेरिका में। सेक्स डिफरेंसेस में अगर हम बात करें तो मेंस में हायर केसेस होते हैं, लेकिन मॉर्टेलिटी सबसे ज़्यादा देखें तो वुमेंस में होती है। यानी कि मेन जो है केसेस तो ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन मेन में टॉलरेंस है, उसे उसके साथ जी भी रहे हैं, लेकिन वुमेंस में केसेस कम है लेकिन डेथ ज़्यादा है। प्रेवलेंस अगर हम देखें तो अबव जो हमारी 40 ईयर्स की एज है उसमें ज़्यादा हो जाती है। डिजीज़ की अगर हम बात करें, अब देखिए COPD में अगर हम देखें तो टेक्सचुअली इसमें 2 डिजीज़ आती हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजीमा। पर जो इसका क्लासिकल ट्रायड है उसमें एज़मा को भी इंक्लूड किया जाता है। एज़मा को क्यों किया जाता है इसमें इंक्लूड, क्योंकि क्रॉनिक एज़मा, देखिए क्रॉनिक एज़मा को इंक्लूड किया जाता है कभी कभी, क्योंकि इट इज़ नॉट फुल्ली रिवर्सिबल। ऐसे तो एज़मा जो है रिवर्सिबल होता है, लेकिन इट कैन प्रेजेंट विद सिमिलर एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन टू COPD। जो क्रॉनिक एज़मा होता है फुल्ली रिवर्सिबल नहीं होता, और उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो COPD के जैसी ही होती है, जिसे हम एज़मा COPD ओवरलैप बोलते हैं। आजकल इसे नई टर्म दिया गया है, एज़मा COPD ओवरलैप सिंड्रोम करके जो है ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, चाहे प्रॉफ एग्ज़ाम हो या हमारा जो PG काय चिकित्सा में भी ये पूछा जाता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या मिलता है हमें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। ये जितनी भी डेफिनेशंस मैंने यहाँ कोट करी हैं ये सब WHO के अकॉर्डिंग करी हैं। और प्रेजेंस जो है, क्रॉनिक कफ होगा, प्रोडक्टिव कफ होगा, पुराना होगा, प्रोडक्टिव कफ होगा, और 3 मंथ्स तक रहेगा पिछले 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में। यानी कि पिछले साल भी उसे 3 मंथ्स तक कफ रहा होगा, और इस साल भी जो पेशेंट आएगा हमारे पास उसे इस साल भी वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे पिछले साल भी 3 महीने तक कफ रहा था, और इस साल भी मुझे 3 महीने तक कफ रह रहा है। जबकि अदर कॉजेज़ जो है वो कफ के हम एक्सक्लूड करेंगे कि उसे कफ जो है वो वायरल से नहीं हुआ होना चाहिए, किसी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से नहीं हुआ होना चाहिए, या कोई कोविड या और कोई इन्फेक्शन से उसे नहीं हुआ होना चाहिए। एम्फाइजीमा की अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो ये एबनॉर्मल परमानेंट एनलार्जमेंट, इसका क्या जो डिस्टिंक्टिव पॉइंट है वो ये है कि ये परमानेंट एनलार्जमेंट है ऑफ एयर स्पेसिस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। यानी कि जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं उसके भी आगे वाला डिस्टल पार्ट जो है उसमें होता है परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाता है, अकम्पनीड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल्स। एल्वियोलर वॉल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है विदाउट ऑब्वियस फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस नहीं होता, और उस पर इलास्टिसिटी जो है वो लूज़ हो जाती है। जो उसकी टेथरिंग होती है हमारी वॉल के साथ एल्वियोलर सैक्स की, वो लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाती है एयर स्पेसिस की। अगर हम पैथोलॉजी की बात करें तो एयरवेज में हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें मिलेगा क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो जाएगा, गॉबलेट सेल्स बढ़ जाएंगी। गॉबलेट सेल्स बढ़ गई तो म्यूकस ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। म्यूकस ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो गया तो फाइब्रोसिस हो जाएगा, और फाइब्रोसिस हो गया तो अल्टीमेटली नैरोइंग हो जाएगी और रिडक्शन हो जाएगी इन दी नंबर ऑफ स्मॉल एयरवेज। अब स्मॉल एयरवेज की जब हमारी नैरोइंग होगी, स्मॉल एयरवेज जो छोटी होगी, तो क्या होगा, एयरवे जो है कोलैप्स हो जाएगी ड्यू टू लॉस ऑफ टेथरिंग। जो मैंने बताया, टेथरिंग होता है कि जो उसे पकड़ के रखता है अपने साथ में, कॉज्ड बाय एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रक्शन इन एम्फाइजीमा। तो अगर हम इसमें देखें, फ़ोटो में देखें तो टर्शरी ब्रोंक्यूल्स हमें दिख रहे हैं कि कैसे उसकी होनी चाहिए थिकनेस। और जब ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लामेशन से फाइब्रोसिस हो गया, और ये कितनी ज़्यादा हो गई है थिकनेस इसकी। लंग पैरेन्काइमा में हमें क्या क्या चेंजेस मिलेंगी, पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि एयरवेज में हमें क्या क्या चेंजेस मिलेंगी। और अब लंग पैरेन्काइमा में अगर हम देखें तो एम्फाइजीमा इफेक्ट्स द स्ट्रक्चर डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जो कि हमने अभी देखा। क्या क्या स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं उसमें, हमारा पहला आ जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, सेकंड एल्वियोलर सैक, सेकंड एल्वियोलर डक्ट, थर्ड एल्वियोलर सैक, और फोर्थ एल्वियोलाई। ये चारों मिलके बनाते हैं हमारा एसिनस, कलेक्टिवली नोन एज एसिनस। ये हमारा डायग्राम में दिखा रहा है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के डिस्टल होता है जो हमारा आता है ना, तो उसके डिस्टल क्या क्या आ रहा है हमारा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आ गया, एल्वियोलस आ गया, एल्वियोलर सैक आ गया, इन सबको मिला के एसिनस बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा में अगर हम देखें तो एनाटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है इसकी विद इन द लोब्यूल, क्योंकि एम्फाइसीमा कभी कभी अकेला भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, प्रॉफ एग्ज़ाम में एम्फाइसीमा, तो एम्फाइसीमा डिटेल में पता होना चाहिए। टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये देखिए अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल आ गया,
इसके डिस्टल पार्ट हमारा एसिनस आ गया, इसमें ये एल्वियोलर डक्ट आ गया, एल्वियोलाई, सेप्टम और एसिनस। अब अगर सेंट्री एसिनार क्या है, एनाटॉमिकली जो कि सेंट्रल पार्ट को अफेक्ट कर रहा है। पैन एसिनार हो गया अगर पूरा एसिनस जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है इसका। पैरासेप्टल अगर हो गया कि सेप्टा के आगे वाला अगर आप देख रहे हैं तो पैरासेप्टल हो गया। इरेगुलर है कि ये वाला एल्वियोलर सैक अफेक्ट कर दिया, ये वाला कर दिया, तो ये इरेगुलर हो जाता है। पैथोजेनिक ट्रायड की अगर हम बात करें सीओपीडी की, तो इसमें क्या मिलेगा हमें, परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन मिलेगा, प्रोटीएज एंटी प्रोटीएज इम्बैलेंस मिलेगा क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो रहा है हमारा लंग टिश्यू का, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मिलेगा। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स हमारे क्या क्या आ जाते हैं, टोबैको स्मोकिंग ऑब्वियसली, एक्सपोजर्स फर्स्ट आ जाता है एक्सपोजर, सेकंड आ जाता है होस्ट का फैक्टर। एक्सपोजर यानी कि होस्ट की गलती नहीं थी, बाहर से उसे जो है इफेक्ट हो रहा है, वो किस किस से होगा, टोबैको स्मोक से होगा, बायोमास फ्यूल एक्सपोजर से होगा और एयर पोल्यूशन से होगा। अब होस्ट फैक्टर में क्या क्या आ जाता है कि अगर उसे जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, एबनॉर्मल लंग उसका डेवलप हुआ है पेशेंट का, हमारा बचपन से ही उसके लंग में कोई दिक्कत थी, लंग एबनॉर्मल ही था उससे, या फिर एक्सेलरेटेड एजिंग है पेशेंट की, वो ऐसी कंट्री में या ऐसे उसके एनवायरनमेंट है कि जहाँ पर एजिंग उसकी जल्दी हो रही है, लंग डैमेज ज़्यादा हो रहा है, वही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाली बात आ जाती है इसमें। वाई जेनेटिक्स है ना, नाउ विल सी वाई जेनेटिक्स आर इम्पॉर्टेंट। जेनेटिक्स कैसे इफेक्ट कर रहे हैं इसमें, तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जो है एक जेनेटिक कंडीशन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 2% ऑफ केसेस ऑफ COPD। इन दिस कंडीशन द बॉडी डज नॉट मेक इनफ प्रोटीन दैट इज अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो गई, द बॉडी इज नॉट एबल टू मेक अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। नाउ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटेक्ट्स द लंग्स फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय प्रोटीएज एंजाइम्स सच एज इलास्टेज एंड ट्रिप्सिन दैट कैन be released as a result of an inflammatory response to tobacco smoke. So alpha-1 antitrypsin is not there to protect your lung from the damage, so as a result of an inflammatory response to tobacco smoke they are released. So symptoms, cough and sputum will be the symptom, chronic dyspnea, wheezing sound will also be heard, weight loss, chest tightness. Weight loss is very important. Then how will grade the dyspnea? So MMRC dyspnea scale, the grade 0 states that the patient will come to you and the patient will say I only get breathless when strenuous exercise। ठीक है, पेशेंट ये बोलेगा, ग्रेड 0 हम उसे देंगे जब पेशेंट ये बोलेगा कि मैं नॉर्मली तो ठीक रहता हूँ लेकिन जब मैं कोई एक्सरसाइज करता हूँ उस टाइम पर मेरी जो है सांस फूल जाती है। ग्रेड 1 ये होगा कि जब पेशेंट ये बोलेगा कि मैं शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो जाता हूँ जब मैं हरी करता हूँ ऑन द लेवल और वॉकिंग अप अ स्लाइट हिल, अगर मैं स्लाइट हिल पर वॉक करता हूँ उस टाइम पर मेरी जो है सांस फूलती है, नॉर्मली मैं ठीक रहता हूँ। ग्रेड 2 में पेशेंट ये बोलेगा कि मैं स्लो चलता हूँ अपनी एज के मुकाबले, जो मेरे एज के लोग हैं उनसे मैं स्लो चलता हूँ क्योंकि मेरी सांस फूल जाती है और मुझे रुकना पड़ता है और अपनी स्पीड पर चलना पड़ता है, मैं बाकी लोगों की पेस को मैच नहीं कर पाता। ग्रेड 3 में पेशेंट हमें क्या बोलेगा कि मैं हर 100 मीटर के बाद जो है थोड़े कुछ मिनट के लिए जो है बैठ जाता हूँ और थोड़ी सांस पकड़ता हूँ, सांस फूल जाती है। और लास्ट ग्रेड जो है वो ये होता है जब पेशेंट ये बोलता है कि मैं घर से बाहर ही नहीं निकल सकता हूँ डॉक्टर साहब, मेरे को तो मतलब सांस फूल जाती है, जैसे ही मैं घर से बाहर निकलूँ तो मेरे डस्ट चली जाती है या धुआं लग जाता है तो मेरी सांस फूल जाती है, इसलिए मैं बाहर ही नहीं जाता, और अपने कपड़े बदलते हुए भी मेरी सांस फूल जाती है। तो ये ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेडिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल। हो सकता है यही दे दे कि शॉर्ट ऑफ ब्रेथ व्हेन हरिंग ऑन द लेवल और वॉकिंग अप अ स्लाइट हिल, तो कौन से ग्रेड में आएगा, MMRC के अकॉर्डिंग, मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल फॉर डिस्निया ना, डिस्निया स्केल। या ये पूछ ले कि 100 मीटर पे कौन रुकता है, तो ग्रेड 3 रुकता है। ठीक है, तो ये ग्रेडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। उसके बाद फिजिकल साइंस, अगर हम इंस्पेक्शन की बात करें तो इंस्पेक्शन में हम पेशेंट को देखेंगे सबसे पहले तो हमें क्या दिखेगा, बैरल शेप चेस्ट दिखेगी, एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स हमें दिखेंगे उसके कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन दिखेगी हमें, एक्सपिरेशन थ्रू पर्स्ड लिप्स दिखेगी, पैराडॉक्सिकल रिट्रैक्शन ऑफ लोअर इंटरस्पेसिस दिखेगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जो कि हूवर्स साइन भी बोला जाता है, अभी हम देखेंगे इनको, ट्राइपॉड पोजीशन दिखेगी। सबसे पहला अगर हम देखें बैरल शेप चेस्ट, नॉर्मल चेस्ट का हमें ये दिख रहा है कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कैसा होता है स्पाइनल कॉर्ड के अकॉर्डिंग, और बैरल शेप चेस्ट अगर आप देखेंगे तो देखिए कितना शेप में जो है चेंज आ चुका है, ये ऐसे भी, और अगर हम ऐसे इसको देखें तो ऐसे भी बढ़ चुकी है चेस्ट।
ट्राइपॉड पोजीशन क्या है, अगर आप देखेंगे सिटिंग में ट्राइपॉड कैसा होता है, पेशेंट ऐसा बैठेगा, जिसे भी डिस्निया होगा, सीओपीडी होगा तो पेशेंट ऐसे बैठेगा, और स्टैंडिंग में जब भी चल रहा होगा पेशेंट तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसे बैठे, ऐसे खड़ा हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, सांस फूल गई है, सांस पकड़नी है मुझे वापस। तो क्यों ट्राइपॉड है ना, वाई ट्राइपॉड? बाय सिटिंग विद एल्बोज और हैंड्स ऑन नीज पेशेंट ऑप्टिमाइजेज द डायफ्राम फंक्शन। पेशेंट का जो डायफ्राम का फंक्शन है वो जो ऑप्टिमाइज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि उसका वर्क ऑफ ब्रीथिंग जो है वो कम हो रहा है, ब्रीथिंग का लोड जो है उसकी लंग्स पे कम पड़ रहा है, क्योंकि वो एसेसरी चेस्ट मसल्स को यूज़ कर रहा है मोर एफिशिएंटली। ये एक टेम्परेरी एड है हमारी बॉडी की रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए, एक टेम्परेरी मैकेनिज्म है बॉडी का लोड कम करने का लंग्स के ऊपर। हूवर साइन में क्या मिलेगा हमें, इट इज़ अ इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द लोअर रिब केज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन रादर देन नॉर्मल आउटवर्ड एक्सपेंशन। नॉर्मली जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो हमारे लोअर रिब्स जो हैं वो आउटवर्ड एक्सपैंड होते हैं, लेकिन हूवर साइन में क्या हो जाएगा सीओपीडी के पेशेंट में कि उसके लोअर रिब्स जो हैं वो इनवर्ड हो जाएंगे, उसे हूवर साइन बोला जाता है। क्योंकि इससे क्या, इसका मतलब ये है कि डायफ्राम की जो हमारी फ्लैटनिंग हो चुकी है। ये देखिए इंस्पिरेशन पे, ये देखिए अब लोअर रिब्स में इनवर्ड डिप्रेशन सा इसमें लग रहा है, और एक्सपिरेशन पे देखिए, अब एक्सपिरेशन पे ठीक हो चुका है और इंस्पिरेशन पे हमें ऐसा दिख रहा है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अगर हम देखें तो पाल्पेशन पे हमें डिक्रीज्ड फ्रेमिटस वोकैलिस मिलेगा, ये क्या है अभी देखेंगे। परकशन में हमें हाइपर रेजोनेंट मिलेगा, आवाज़ गूंजेगी परकशन पे। डायफ्राम हमें डिप्रेस्ड दिखेगा और डिमिनिशन दिखेगी एरिया ऑफ एब्सोल्यूट कार्डियक डलनेस। एक्सपिरेशन में हमें प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन ऑस्कल्टेशन में दिखेगी, रेड्यूस ब्रीथ साउंड दिखेंगी और वीज दिखेगी। ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथिंग में हमें वीजिंग साउंड आएगी। क्रैकल्स कैन ऑल्सो बी हर्ड इन इफ़ इन्फेक्शन एग्जिस्ट, क्योंकि जब सीओपीडी होता है तो इसके साथ में इन्फेक्शन भी एसोसिएटेड हो जाता है, तो क्रैकल्स भी सुनाई दे सकती हैं। अब व्हाट इज़ वोकल फ्रेमिटस या फ्रेमिटस वोकैलिस? ये एक पैल्पेबल वाइब्रेशन है। जब भी पेशेंट जो है बात करता है तो उसके लैरिंग से जो साउंड वेव्स निकलती है वो हमें लंग पे पैल्पेशन के थ्रू फील होती हैं। और इसमें नॉर्मली क्या है कि हम पेशेंट की बैक पर चेक करते हैं इसे, और पेशेंट को 99 बोलने को बोलते हैं। जब वो 99 बोलता है तो जब हमें डिटेक्ट होगी तो ये लंग कंसोलिडेशन को दिखाता है, और डिक्रीज्ड वाइब्रेशन है तो प्लूरल या एयरवे इशू को दिखाता है। अब डायग्नोसिस इसका कैसे किया जाता है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ सीओपीडी इज स्पायरोमेट्री। इट कन्फर्म्स द डायग्नोसिस बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन। और स्पायरोमेट्री में क्या मिलेगा हमें, जो फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम है इन 1 सेकेंड FEV1 का जो रेशो है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी FVC के साथ, यानी कि FEV1 अपॉन FVC जो है इसका रेशो लेस देन 0.7 अगर हमें आ रहा है तो वो क्या है, COPD। ठीक है, तो इसका ये भी पूछा जा सकता है, ये भी हमारा PG एग्जाम्स में आ सकता है कि गोल्ड 1 को क्या कैटेगरी आती है, माइल्ड में, गोल्ड 2 मॉडरेट, गोल्ड 3 सीवियर, गोल्ड 4 वेरी सीवियर, है ना। तो ये आ सकता है क्वेश्चन। और इसमें क्या मिलेगा हमें, स्पायरोमेट्री ग्रेटर देन इक्वल टू 80% FEV मिलेगा, FEV1 और FVC का रेशो जो है लेस देन 0.7 मिलेगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इससे। एक्सरे फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलेगा, ये नॉर्मल लंग है, अगर हम नॉर्मल लंग देखें तो विजिबल रिब्स होंगी, नॉर्मल हार्ट साइज होगा, डोम्ड डायफ्राम होगा, टिपिकल रिब्स जो विजिबल होंगी, जबकि इसमें हमें बुल्ले जो है ये बुल्लास दिखेंगे। उसके अलावा हाइपर इन्फ्लेशन दिखेगी लंग्स की, नैरो वर्टिकल हार्ट दिखेगा, फ्लैटेंड डायफ्राम दिखेगा, और विजिबल रिब्स इंक्रीज्ड हो जाएंगी हमारी। मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो ब्रोंकोडायलेटर्स, इसमें जो मैनेजमेंट है वो 4 स्टेजेस में की जाती है इसकी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 1 इज माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन, स्टेज 2 इज मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्शन, स्टेज 3 इज सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्टेज 4 इज वेरी सीवियर, जो कि हमने ऊपर अभी गोल्ड वाले जो उसका वो था उसमें भी हमने देखा। तो स्टेज 1 में हम क्या देते हैं, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। स्टेज 2 में हम क्या देंगे, ये हम स्टेज 1 में दे रहे हैं शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स।
स्टेज 2 में हम क्या देते हैं, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स, और अगर नीडेड है, इफ़ नीडेड, ये भी हम देते हैं स्टेज 2 में लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स। ठीक, उसके बाद कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन भी हम देते हैं लॉन्ग एक्टिंग के साथ साथ में स्टेज 2 में। स्टेज 3 में हम क्या देते हैं, ऑल द प्रीवियस, जैसे शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग प्लस कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्लस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं। और स्टेज 4 में हम क्या देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के साथ में ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं उसे, पेशेंट को, और सर्जिकल ऑप्शंस भी उसे हम बताते हैं कि, और एंटीबायोटिक्स अगर एसोसिएटेड हैं तो वो भी देना पड़ेगा, और लो लंग वॉल्यूम रिडक्शन थेरेपी या लंग ट्रांसप्लांट भी जो है हम स्टेज 4 में करवाते हैं पेशेंट की। और जो ड्रग्स के एग्जांपल हैं वो ये हैं कि शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स में हम क्या दे सकते हैं, एल्ब्यूटरॉल दे सकते हैं, ठीक है, प्रोटेरेनॉल दे सकते हैं। लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स में हम क्या दे सकते हैं, सेलमेट्रॉल और फॉर्मोटेरॉल। जैंथीन डेरिवेटिव्स में हम इसे थियोफाइलिन दे सकते हैं पेशेंट को। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हम क्या दे सकते हैं, फ्लूटिकासोन, है ना, ब्यूटिसोनाइड। ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में वी कैन गिव प्रेडनिसोन। एंड सेकेंड वन दैट वी सॉ इज pulmonary rehab या pulmonary rehabilitation. In that we can encourage patient for smoking cessation, physiotherapy and psychosocial support we give to the patient. And if there is excessive consolidation of the lung, excessive breathlessness in the patient, we admit the patient for IPD, और उसमें हम जो है उसकी लंग रिडक्शन थेरेपी या लंग रिडक्शन सर्जरी या लंग ट्रांसप्लांट जो है वो एडवाइस करते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। लाइफस्टाइल चेंजेस में हम स्मोकिंग छोड़ने को बोलेंगे, मेडिकेशन मैनेजमेंट, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, न्यूट्रिशन कराएंगे, रेगुलर चेकअप्स, है ना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसे बोलेंगे दूर करने को, ऑक्सीजन थेरेपी करवाते हैं घर पे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स लगा के, एक्टिव रहने को बोलते हैं पेशेंट को, और स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने को बोलते हैं। कॉम्प्लिकेशन में अगर हम देखें तो निमोनिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, राइट साइडेड हार्ट फेलियर जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन से ही अल्टीमेट राइट साइडेड हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा पेशेंट। निमोथोरैक्स होगा, डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टेबल है जिसमें हम डिफरेंस देख रहे हैं कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का क्या है, एम्फाइसीमा का क्या है, और एज़मा का क्या है। तो डेफिनेशंस तो हम देख चुके हैं पहले ही। प्राइमरी पैथोलॉजी अगर हम बात करें तो म्यूकस ग्लैंड हाइपरप्लेजिया मिलेगा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रक्शन मिलेगा एम्फाइसीमा में, और ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी प्लस इन्फ्लामेशन मिलेगा एस्मा में। इटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो स्मोकिंग से होगा, है ना। एम्फाइजीमा जो है हमने देखा अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। एस्मा जो है एलर्जेंस, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स सबसे होगा। उसके बाद इन सभी पॉइंट्स को आप देख सकते हैं डिटेल में, नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्प्यूटम की अगर हम बात करें तो स्कैंटी मिलेगा एम्फाइजीमा में, कोपियस मिलेगा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, थिक म्यूकॉइड मिलेगा एस्मा में। उसके बाद बॉडी टाइप हमें ओवर इवेंट मिलेगी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, थिन मिलती है एम्फाइजीमा में, और नॉर्मल मिलती है लगभग एस्मा में। ठीक है, कॉर पल्मोनेल जो है हमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में कॉमन मिलेगा। इन्हीं पॉइंट्स को मैंने आगे हाईलाइट भी कर रखा है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर सकते हैं, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत काम आएगा ये डिफरेंस। उसके बाद ये हाई यील्ड पॉइंट्स की जो मैं बात कर रहा था, सबसे पहला ये आ जाता है हमारा कि डिफ्यूज़ कैपेसिटी जो है वो कम होती है, DLCO कम होता है एम्फाइजीमा में। ये एक हॉल मार्क है एम्फाइजीमा का, जबकि DLCO नॉर्मल रहता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एस्मा में। इससे PG में MCQs बन सकते हैं इन पॉइंट्स से, ये वो पॉइंट्स हैं। अब रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन किस में होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा में जो है इरिवर्सिबल COPD में होता है, इरिवर्सिबल। एज़मा में रिवर्सिबल होता है, जबकि हमने देखा अगर क्रॉनिक एज़मा हो तो क्रॉनिक एज़मा में भी इरिवर्सिबल हो जाता है, जिसको हमने बोला था एज़मा COPD ओवरलैप सिंड्रोम। ठीक है, ब्लू ब्लोटर्स प्लस पिंक पफर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ब्लू ब्लोटर्स किस में मिलेगा हमें, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, क्योंकि साइनोसिस हो रहा है प्लस हाइपरकैप्निया हो रहा है प्लस पेशेंट जो है वो ओबीज होता है। एम्फाइजीमा में पिंक पफर्स, पेशेंट थिन, साइनोसिस नहीं होगा, डिस्निया होगा, तो पिंक पफर बोलते हैं पेशेंट को, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को ब्लू ब्लोटर्स। प्राइमरी पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो म्यूकस ग्लैंड हाइपरप्लेजिया हो रहा है हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रक्शन एम्फाइसीमा में, और इन्फ्लामेशन प्लस हाइपर एक्टिविटी इन एस्मा। PAC प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और CO2 का पैटर्न क्या मिलेगा हमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, O2 कम CO2 ज़्यादा। एम्फाइजीमा में माइल्ड O2 कम, नॉर्मल
भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है CO2। एज़मा में नॉर्मल मिलेगा एक्सेप्ट सीवियर अटैक होगा, तब उस टाइम पे हमें डिफरेंस मिल सकता है। कॉमन कॉज एम्फाइजीमा ब्रोंकाइटिस का स्मोकिंग, एम्फाइजीमा यंगर पेशेंट में तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, एज़मा एलर्जेंस, एज़मा इज एलर्जिक डिजीज। अर्ली सिम्टम हमें क्या मिलेगा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ, एम्फाइजीमा में प्रोग्रेसिव डिस्निया, एज़मा में एपिसोडिक वीज। एक्सरे फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स जो हैं बढ़ी हुई मिलेंगी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में। एम्फाइजीमा में हाइपर इन्फ्लेशन मिलेगा, फ्लैटन डायफ्राम मिलेगा, बैरल चेस्ट जिसे हमने देखा था। एज़मा में हमें यूजुअली नॉर्मल हाइपर इन्फ्लामेशन मिलती है। कॉर पल्मोनेल हमने अभी देखा, कॉर पल्मोनेल क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में मिलेगा, लेट एम्फाइजीमा में मिलेगा और रेयरली एज़मा में मिलेगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में। अब इससे क्वेश्चन जो है वैसे ही पूछे जा सकते हैं क्लिनिकली। 40-year-old पेशेंट कम्स टू यू टू दी OPD, आपको फाइंडिंग मिल गई उसमें, कॉज उसने बताया कि एनवायरमेंटल फैक्टर से हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, और कॉर पल्मोनेल मिल गया आपको, तो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस क्या होगा इसका, है ना। तो वैसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। रेस्पॉन्स टू ब्रोंकोडायलेटर्स, सबसे बेस्ट रेस्पॉन्स कौन देगा, एज़मा। पुअर रेस्पॉन्स COPD देगा ब्रोंकोडायलेटर्स में। स्प्यूटम कूपियस स्प्यूटम, है ना, ये आ जाएगा कि मोस्ट कॉमन उसमें क्रॉनिक कॉर पल्मोनेल भी था, स्प्यूटम जो है उसने पेशेंट ने बताया कूपियस है। नाउ व्हाट्स योर डायग्नोसिस, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस विल बी द आंसर। तो इन्हीं फीचर्स के बेस पे आपको डायग्नोसिस बनाने का भी क्वेश्चन आ सकता है। एम्फाइजीमा में मिनिमल मिलेगा हमें स्प्यूटम, और एज़मा में थिक और म्यूकॉइड मिलेगा हमें। एज ग्रुप की अगर हम बात करें, मिडल एज स्मोकर्स में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मिलेगा, एम्फाइजीमा ओल्डर एडल्ट्स में मिलेगा, और एज़मा जो है बच्चों में मिलेगा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस प्रोडक्टिव कफ ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 months पर ईयर, एम्फाइजीमा DLCO कम, हाइपर इन्फ्लेशन, एज़मा रिवर्सिबिलिटी प्लस ट्रिगर्स। की डायग्नोस्टिक क्लू, अगर आपने ये क्लूज़ याद रख लिया तो बाकी सिम्टम्स जो भी हों आप उसे हटाकर भी इतने ही फीचर से आप डायग्नोसिस बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि 50-year-old पेशेंट कम्स टू योर OPD, ऐसे ऐसे करके ये फीचर बोले, अगर उसमें लिखा है कि प्रोडक्टिव कफ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 months है फॉर 2 years, तो वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। अगर ये बोल रहे हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन है और DLCO कम है, तो वो एम्फाइजीमा है। अगर बोल रहे हैं कि रिवर्सिबल कंडीशन है, उसे रिवर्स हो रहा है, उसे ट्रिगर्स से जब वो हट जाता है तो पेशेंट को रिलीफ हो जाता है, तो एज़मा है। तो वर्ल्ड COPD डे जो है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये 3rd Wednesday ऑफ नवंबर को हर साल मनाया जाता है। तो इस साल 2026 में वो कब आ रही है, 18 नवंबर 2026 को वर्ल्ड COPD डे इस साल मनाया जाएगा। रेजिंग अवेयरनेस, प्रमोटिंग प्रिवेंशन एंड इम्प्रूविंग केयर फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसके बाद मैंने एक कोट लिखा है यहाँ पर कि ऑल थिंग्स शेयर द सेम ब्रेथ, द बीस्ट, द ट्री, द मैन, the air shares its spirit with all the life it supports. There's same air for all of us, but some used to smoke and some use it to live. So let's choose life, let's choose smoke less, or no smoke. Let's just choose life over smoke and nature in its true form to live our lives to the fullest. So this concludes our lecture, students. So if you have any doubts you can ask in the comment section, और जो वो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है BMS प्रॉफ स्टूडेंट्स के लिए। सो दिस concludes our first topic of high yield topics. Thank you.